بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں عوام پر ٹیکسوں کا کلہاڑا چل گیا۔ وفاقی بجٹ میں تمام سیکٹر سے ٹیکس چھوٹ ختم۔ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% ٹیکس لگے گا۔ آن لائن پلیٹ فارم سے خریداری پر 18% سیلز ٹیکس کی تجویز۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس بھرنا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5% کاربن لیوی ٹیکس عائد۔ اگلے سال یہ ٹیکس دگنا ہو جائے گا۔ چپس، بسکٹ، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم، تیار خوراک سمیت متعدد اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز۔ فروزن گوشت اور تیار شدہ خوراک پر بھی 5% ایکسائز ڈیوٹی لگے گی۔ نئے بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار، تمام سیکٹر سے ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5% کاربن لیوی ٹیکس عائد۔ اگلے سال یہ ٹیکس دگنا ہو جائے گا۔ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ بجٹ میں چپس، بسکٹ، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم، تیار خوراک سمیت متعدد اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز ہے۔ فروزن گوشت، ساسز اور تیار شدہ خوراک پر بھی 5% ایکسائز ڈیوٹی کی تجویز ہے۔ نقد خریداری کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ اشیاء مہنگی ملیں گی۔ بینک کارڈ سے خریداری کو فروغ دیا جائے گا۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس لگے گا۔ آن لائن پلیٹ فارم سے خریداری پر 18% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا۔ نان فائلرز کا گھیرا مزید تنگ۔ نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کر دی گئی۔ نان فائلرز کو بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ نان فائلرز گاڑی یا غیر منقولہ جائیداد بھی نہیں خرید سکے گا۔ فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم۔ ضم شدہ اضلاع پر 10% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ خیبر اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع میں 5 سال کے دوران مرحلہ وار سیلز ٹیکس لگایا جائے گا۔ وفاق کا 17,573 ارب کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ۔ مسلح افواج کے افسران سولجرز کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس کا اعلان۔ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملے گا۔ پینشن اسکیم میں اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود۔ 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ ہوگا۔ حکومت کا زیادہ پینشن لینے والے افراد کو بھی ٹیکس کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن پر 5% ٹیکس عائد ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا ریلیف۔ بجٹ میں افواج پاکستان کے اسپیشل الاؤنس میں اضافہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 6% اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ تنخواہیں 10% بڑھانے کی منظوری دی۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن 7% بڑھانے کی منظوری دی گئی۔ تنخواہوں پر انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی گئی۔ بجٹ میں 6 سے 12 لاکھ روپے تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی۔ 22 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کے بجائے 11% کر دیا گیا۔ 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر ٹیکس 25 سے کم کر کے 23% کر دیا گیا۔ بجٹ میں 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کرنے والوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی۔ درمیانے اور نچلے پینشن ہولڈرز ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ملازمین کو 30% ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز بھی دی گئی۔ نئے بجٹ میں کئی شعبوں کے لیے ٹیکسز میں کمی۔ کئی شعبوں پر عائد ایڈیشنل فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہونے سے پراپرٹی کے کاروبار میں تیزی آئے گی۔ گاڑیاں درآمد کرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور امپورٹڈ گاڑیاں سستی ہوں گی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے خام مال کی درآمد پر ڈیوٹی 0 کر دی گئی۔ ڈیوٹی ختم ہونے سے مقامی صنعتوں کے لیے خام مال سستا ہوگا اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے خام مال کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ نئے بجٹ میں کئی شعبوں کے لیے ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے۔ کئی شعبوں پر عائد ایڈیشنل فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ آئندہ مالی سال سپر ٹیکس کم کیا جائے گا۔ 20 سے 50 کروڑ روپے سالانہ آمدن والی کارپوریشنز پر سپر ٹیکس 0.5% کم کر دیا گیا ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر 7% ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہونے سے پراپرٹی کے کاروبار میں تیزی آئے گی۔ گاڑیاں درآمد کرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور امپورٹڈ گاڑیاں سستی ہوں گی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی خام مال کی درآمد پر ڈیوٹی 0 کر دی گئی ہے۔ ڈیوٹی ختم کیے جانے سے مقامی صنعتوں کے لیے خام مال سستا ہوگا اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے خام مال کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کا وفاقی بجٹ پر پریس کانفرنس میں رد عمل۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد نے کہا لاہور چیمبر کے کئی مطالبات تسلیم کیے گئے۔ کاروباری برادری وسیع پیمانے پر ریلیف کی توقع کر رہی تھی۔ دفاعی بجٹ میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت تھا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابو ذر شاد کی وفاقی بجٹ سے متعلق پریس کانفرنس۔ سینئر نائب صدر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر موجود تھے۔ سابق صدر میاں انجم نثار محمد علی میاں، سابق سینئر نائب صدر علی حسام اصغر اور سابق نائب صدر فہیم الرحمان سیکل نے خطاب کیا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابو ذر شاد کا کہنا تھا بجٹ میں لاہور چیمبر کا دیرینہ مطالبات تسلیم کرتے ہوئے ٹیکس ریٹرن آسان بنا دی گئی۔ ایس ایم ایز کے لیے اقدامات کا فقدان نظر آیا۔ بجٹ میں پانی کے منصوبوں کے لیے زیادہ فنڈز مختص کرنا اچھی بات ہے۔ سیل ٹیکس انوائس کے اوپر جو کام کیا ہے یہ بھی بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ کوئی بزنس مین ٹیکس چوری کرنا نہیں چاہتا، نہ کرنا پسند کرتا ہے۔
मगर जो लोग नॉन रजिस्टर्ड थे उनके ऊपर जो उन्होंने फोकस किया है ये बहुत अच्छा कदम किया है। हम इसके लिए बहुत खुश हैं। पानी के मंसूबों के लिए जो पैसे रखे गए हैं ये हमारी लाइफ लाइन है, क्योंकि पानी के बगैर अगले 15 साल हमारे गुजारना नामुमकिन है। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान का कहना था बजट में ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई। नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी बोले बजट की डायरेक्शन सरमायाकारी का फरोग होनी चाहिए थी। इंडस्ट्री ज़राअत आबी वसाइल के लिए बहुत कम बजट रखा गया। हम एक मर्तबा फिर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डिस्करेज करने जा रहे हैं और नॉन फाइलर की इस्तेलाह बनाकर हम जो हमारी नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसी की तरफ इक्विलिब्रियम को जो है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इसी तरह और बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बजट स्पीच के अंदर मुकम्मल तौर पर उसमें मौजूद नहीं थी। डॉलर और पॉलिसी रेट इसको मजीद कम करने की ज़रूरत है। जब तक आप मजीद इसमें मजीद कमी नहीं लाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें ग्रोथ जो है वो उस तरह नहीं हो सकेगी। और जो सेल टैक्स है इसकी जो शरह है उसको कम करने की ज़रूरत है। दुनिया में इतनी सेल्स टैक्स की शरह नहीं है जितनी कि आपने पाकिस्तान में रखी हुई है। और क्यों रखी हुई है? और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी जो सेल टैक्स नहीं देगा उसके साथ आप जो जुल्म सितम करने जा रहे हैं ये नाइंसाफ़ी है सरासर। साबिक नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल का कहना था ताजिर बिरादरी की मुशावरत से बजट बनाना चाहिए था। कैमरामैन नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। विफाकी बजट माली साल 2025-26 फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट तकरीर सुनने का एहतमाम किया गया। लाहौर की ताजिर बिरादरी और चैम्बर अरकान ने बजट तकरीर लाइव देखी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट तकरीर सुनने का एहतमाम किया गया। पैटर्न इन चीफ UBG SM तनवीर, सदर वुमेन चैम्बर लाहौर फलाहत इमरान, नायब सदर चैम्बर कुर्रतुल ऐन ने शिरकत की। शुरका ने बड़ी स्क्रीन पर बजट स्पीच देखी। पैटर्न इन चीफ UBG SM तनवीर ने वफाकी बजट को सराहा और खुश आइंद करार दिया। उनका कहना था दफाई बजट को बढ़ाया गया है, हम उसको सराहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में विद होल्डिंग टैक्स को कम किया गया है। हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी दी है, इसकी हिमायत करते हैं। टैक्स फ्री क्रेडिट दिया जाएगा 10 मरले के घर को और 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स को। इसको हम एप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसमें मॉर्टगेज फाइनेंस को भी प्रमोट किया जाएगा कि जो लोग घर खरीद नहीं सकते वो मॉर्टगेज कराएं, तो इसको भी हम एप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है। स्टैम्प ड्यूटी की रिडक्शन 4% से कम करके 1% पे ले आए हैं। ये भी एक बहुत ही खुश आइन बात है कि गवर्नमेंट ने इस पे काम किया। शुरुका ने बजट पर हुकूमत की तारीफ की और उसे खुश आइन करार दिया। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादम कबो, सिटी 42। विफाकी बजट 2025-26 लाइव देखने का MM आलम रोड पर एहतमाम किया गया। प्याफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर एसोसिएशन फ्रंट की जानिब से तकरीब सजाएगी। ताजरों का कहना है कि टैक्स देने के लिए तैयार हैं। टैक्स निज़ाम के दायराकार को जितना वसी किया जाएगा उतना बेहतर है। चेयरमैन प्याफ सैयद महमूद गजनवी समेत दीगर शरीक हुए। सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ मुदस्सिर मसूद चौधरी और वाइस चेयरमैन प्याफ राजा वसीम समेत दीगर शरीक हुए। मुनक़िदा तकरीब में बजट तकरीब के बाद चेयरमैन प्याफ सैयद महमूद गजनवी का कहना था कि ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार हैं। टैक्सेशन सिस्टम और उसके दायराकार को जितना वसी किया जाए उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जंग के बाद मैं समझता हूँ पूरी कौम यक ज़बान इकट्ठी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए इस वक्त इस चीज़ को कैश कराएं, इकोनॉमिक वॉर की तरफ जाएं और कहें कि जी 2 साल के लिए हमने इकोनॉमिक वॉर डिक्लेयर कर दी है और जितनी ताजर बरादरी है ये सब आपके सिपाही हैं, ये आपके साथ खड़े होंगे, सीसा प्लाई भी दीवार की तरह आपके साथ होंगे, ताकि जब तक इकोनॉमिकली मुल्क तरक्की नहीं करेगा मेरा नहीं ख्याल को मुल्क को तरक्की करेगा। सीनियर चेयरमैन मुदस्सिर मसूद का कहना था कि सोलर के हवाले से इस्लाहात खुश आइंदा है। हुकूमत को माशी सरगर्मी बढ़ाना होगी। जिस तरह से ये ग्रोथ हुई है सोलर सिस्टम की, मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर डिफरेंट रीजंस। एक तो हमारा ऑयल का बिल, उसमें जो जितनी हमारी ये थर्मल पावर है जो हम बिजली तेल से बनाते हैं, उसके तेल का हमारा बिल कम हो रहा है। ग्रीन एनर्जी है, हर बंदे के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की गवर्नमेंट को उस तरह से ज़रूरत नहीं रही। वाइस चेयरमैन राजा वसीम का कहना था कि FBR की जानिब से हम पे तलवार लटका दी। आपने बजट तो रख दिया लेकिन आइंदा सालों के अहदाफ को तय नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई बजट बेहतर होगा। जब आपने 18,500 अरब रुपए का अखराजात का तखमीना रख लिया, उस पे अब उसकी कलेक्शन जो है वो FBR की 19,000 19,500 की कलेक्शन है और ये सीधी इंडस्ट्री पे ट्रेड पे एक तलवार लटका दी गई है FBR की तरफ से
जो मुसलसल ताजर को दिन और रात में परेशान किए रखेगी। बजट के हवाले से कोई खुश और कोई आइंदा हिकमत अमली के लिए हुकूमत को तरगीब देता नजर आया। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। अब यहाँ पर बात करेंगे शहरी लाहौर के मौसम की। गर्मी हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री ज़्यादा रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। PDMA ने कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। शहर में सूरज सवा नेजे पर आ गया। तपिश से शहरी परेशान। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री तक गया। महकमा मौसमियात ने दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। PDMA ने 13 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की। PDMA के मुताबिक लाहौर में दर्जे हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। DG PDMA का कहना है कि तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम है। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। माहिरीन ने शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। माहिरीन का कहना है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें और बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। घरों से बाहर निकलने की सूरत में सर ढांप लें। गर्मी के सताए शहरी ठंडे मशरूबात पीने बाहर निकल पड़े। इमली, आलू बुखारे और दीगर ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश लग गया। शहरी कहते हैं शहर में पड़ने वाली सख्त गर्मी ने निढाल कर रखा है। लाहौर आजकल शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसने शहरियों को नढाल कर रखा है। रात होते ही शहरियों की अक्सरियत ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। इमली आलू बुखारे का शरबत शहरियों का पसंदीदा मशरूब बन चुका है, इसीलिए इमली आलू बुखारे के शरबत की मांग भी बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि इमली आलू बुखारे का शरबत जिस्म को ठंडक देने के साथ साथ हाजमे के लिए भी मुफीद है। इमली आलू बुखारे का शरबत पीने के लिए गर्मी बढ़ी है, गर्मी का जोर आपको भी पता कैसा चल रहा है। तो ईद का दिन है, गोश्त खाया हुआ है, मैदे में भी बड़ी गर्मी है, बस आए हुए हैं इसीलिए। मेरे ख्याल में तो काफ़ी हद तक इफेक्टिव है। मैंने कहा खाने को तो कोई दिल नहीं कर रहा। यहाँ स्पेशली ये इमली आलू बुखारे का जूस पीने के लिए आए हैं। सबसे अहम चीज़ जो इसकी है ना कि ये आपको एक दफ़ा ठंडा कर देता है और ये एक बड़ा मज़ेदार और इसमें फ्लेवर बड़े अच्छे हैं और ये बड़ा इफेक्टिव है हमारे जो है ना गर्मी की। माहिरीन तिब की जानिब से शहरियों को सख्त गर्मी में ठंडे मशरूबात पीने की हिदायत की जा रही हैं, मगर शहरियों को गैर मेयारी मशरूबात पीने से गुरेज करना चाहिए। रुमेल अलियास, सिटी 42। जिंदा चिकन की कीमतों के तयन का मेकनिज़म तब्दील। ब्रायलर गोश्त और जिंदा दोनों कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। सूबाई कंट्रोलर जनरल प्राइसेस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब सब्जियां और फलों के सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। दुकानदार सब्जियां और फल मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। जिंदा चिकन की कीमतों के तयन करने का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। अब ब्रायलर गोश्त और जिंदा दोनों कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। सूबाई कंट्रोलर जनरल प्राइसेस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइस कंट्रोल काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब ब्रायलर गोश्त और जिंदा दोनों कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को इस बारे में आगाह कर दिया गया। सूबा भर में ब्रायलर गोश्त की कीमतों बारे नोटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब सब्जियों और फलों की सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। दुकानदार सब्जियां और फल मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। आलू सरकारी कीमत 60, बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी कीमत 40 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 90 रुपए में बेचा जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 40 के बजाय 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों में आम सिंदड़ी सरकारी कीमत 280 रुपए है, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। तरबूज सरकारी कीमत 50 के बजाय 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत 370 रुपए है, जबकि बाजार में 400 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा के लिए लाइसेंसिंग का मामला पैफ, बीमा और ठेके पर दिए गए स्कूलों के असातिज़ा के लिए भी टीचर लाइसेंस लेना लाजमी होगा। मुस्तकबिल में बगैर लाइसेंस किसी भी टीचर को पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टीचर लाइसेंसिंग के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। लाइसेंस को बरकरार रखने के लिए हर 2 या 3 साल बाद दोबारा टेस्ट देना होगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बगैर लाइसेंस किसी भी टीचर को पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। पैफ, बीमा और ठेके पर दिए गए स्कूलों के असातिज़ा के लिए भी टीचर सर्टिफिकेशन हासिल करना लाजमी होगा। ज़राए के मुताबिक टीचर लाइसेंसिंग के लिए ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। लाइसेंस को बरकरार रखने के लिए 2 या 3 साल बाद दोबारा टेस्ट देना होगा।
टेस्ट से कबल असातिज़ा को कम से कम 2 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक टीचर लाइसेंसिंग का मकसद असातिज़ा को जदीद मालूमात से हम आहंग रखना है। ग्रीन टाउन भट्टा नंबर 3 शेर चौक तरक्याती काम इल्तवा का शिकार, अहले इलाका परेशान इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। 5 से 6 फुट की खुदाई के बाद अब तक सड़क को नहीं बनाया गया, जबकि आवाम अपने रोजमर्रा के कामों को करने से कासिर हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन टाउन शेर चौक भट्टा नंबर 3 के इलाके में, जहाँ पर तरक्याती काम जो है वो एक अरसे से रुका हुआ है। और ये तरक्याती काम रुका होने के सबब जो है वो अहले इलाका एक अरसे से जो है वो मसाइल का शिकार हैं। और यहाँ पर उनका कहना ये है कि सीवरेज के पाइप डालने के लिए यहाँ पर खुदाई की गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो पाइप डले नहीं है और ना जो है वो तरक्याती काम जो है वो अभी तक जो है वो शुरू हुआ है। और आगे तक जो है वो कब ये शुरू होगा उसके हवाले से भी जो है वो लाइल्म है। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। पहले आप मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये काम रुका हुआ है और जो है वो क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कब जो है वो यहाँ पर पाइप डालने के हवाले से जो है वो कोई पेशरफ सामने आएगी? ये कह रहे हैं कि इससे पहले थोड़े दिन काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया। उसके बाद ये बंद हो गया। अब कह रहे हैं कि दोबारा हम शुरू करेंगे। अब ईद गुजरी 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ। ईद के बाद, अच्छा ईद से पहले कितनी देर पहले ये खैर काम जो है वो रुकना बंद हो गया? 1 हफ्ता पहले बंद हुआ। 1 हफ्ता पहले कह रहे जी छुट्टी पड़ गई है, छुट्टी पड़ गई। क्या ये काम इनका पाइप है डालना, तो क्यों नहीं कर? कैप डालना था, डल गया। अब उसके बाद ये भर्ती को सीधा करना था ना, वो किए नहीं। पाइप डाल दिए मैं, लेकिन वो नहीं सीधी हो रही। सीधे नहीं हो रहे, तो क्या वो अपना काम करके पाइप डाल के उसके बाद ये मिट्टी का काम वो कह रहे जी आप ही करो। आपको किन मसाइल का सामना इस वाले से? मसाइल का क्या, हम बड़े तंग हो रहे हैं ना, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, किसी के घर खड़ी करते हैं। रास्ता भी बंद हो गया, कुछ हो गया और क्या, हम किसी के घर खड़ी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? क्या कहना, गवर्नमेंट हमारे ये सीधे कर दे तो सही है, मामला सीधे कर। हाँ, और क्या। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंतहाई परेशानी के सबब जो है वो तमाम जो यहाँ पर अहले इलाका है, इलाका मकीन है, वो गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो है मामला सीधे कर दिए जाए, क्योंकि यहाँ पर रहना भी है और गली हमारी है। यहाँ पर पैसे देके जो है वो मकान ख़रीदा और यही जो है वो तवक्को है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा। जो तरक्याती काम जो है वो जितनी मुद्दत में पूरा करने का उसको वादा किया गया था, उसी मुद्दत में जो है वो पूरा हो जाएगा, ताकि यहाँ पर अहले इलाका जो है अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सके और उनको इस खुदाई के सबब जो अनगिनत मसाइल का सामना है, वो मसाइल का सामना जो है वो ना करना पड़े। जी ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी नाज़मुल अमूर नटालिया बेकर की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हुक्म में मौजूद थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नटालिया बेकर के बतौर नाज़मुल अमूर पाकिस्तान में मुस्बत किरदार को सराहा, जबकि मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज और अमरीकी नाज़मुल अमूर ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने हालिया पाक भारत कशीदगी में अमरीका की तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। मरियम नवाज शरीफ ने PSL में लाहौर कलंदर्स की हिमायत पर नटालिया बेकर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने सिस्टर स्टेट होने के नाते कैलिफोर्निया के अवाम से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अमरीकी कांग्रेसनल पाकिस्तान कॉक्स के साथ मुलाकात को मुस्बत और तामीरी करार दिया। कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फ़आल किरदार निहायत अहम है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का PIC के लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर का दौरा दस्याब सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी ने PIC लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर का दौरा किया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना कि PIC लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में मज़ीद सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर में सफाई बेहतर बनाने की भी हिदायत कर दी। इस मौके पर MS डॉक्टर आमिर रफ़ीक भट्ट भी मौजूद थे। नौलखा चर्च में बैनुल मज़ाहिब हमांगी के फ़रोग़ के लिए ईद मिलन पार्टी। रेवरेंड डॉक्टर मजीद देबल ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सूबाई वज़ीर अक़लियत अमूर रमेश सिंह गरोड़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में चेयरमैन कुल मसालिक कुलमाए बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, जावेद विलियम, खतीब दाता दरबार रमज़ान सियाल भी शरीक हुए। लियाकत बलोच, बशीर सिंह बैदी, मुफ्ती आशिक हुसैन और दीगर मजहबी रहनुमा और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने ईद की खुशियाँ एक साथ बांटी और इस लम्हे को इत्तेहाद और यगानगत की अलामत करार दिया। रेवरेंड डॉक्टर मजीद देबल का कहना था, हम एक ऐसे मुआशरे की तश्कील के लिए कोशिश हैं जहाँ रंग, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक ना हो। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था, पंजाब हुकूमत की तरजीहात में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सर फहरिस्त है। लियाकत बलोच का कहना था, पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हैं।
मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। बैरिस्टर अहमद मलिक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का अहतमाम आवारी होटल में किया गया। आवारी होटल में होने वाली तकरीब में चौधरी नूरुल हसन तनवीर सदर विमेन विंग नून लीग दुबई फरजाना कोसर ने शिरकत की। शुमाइला राना, राना खुरम, राशिद नसरुल्लाह, चौधरी शफीक भी शरीक हुए। मेहमान ख़ुसूसी बैरिस्टर अहमद मलिक का कहना था पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दूसरा यौम तासीस तकरीब का IPP पंजाब सेक्रेटेरिएट में एहतमाम किया गया। जनरल सेक्रेटरी IPP मियां खालिद महमूद ने शिरकत की। IPP के दूसरे यौम तासीस की तकरीब में जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब शुएब सदीकी, सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद खान शरीक हुए। सदर जनूबी पंजाब तहसील नवाज गर्देसी, सदर IPP पंजाब शुबे ख़वातीन तस्कीन खाकवानी ने शिरकत की। इस मौके पर दूसरे यौम तासीस की मुनासबत से केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए शुएब सदीकी का कहना था IPP को कलील अरसे में पंजाब और विफाक में नुमाइंदगी का शर्फ हासिल हुआ। हमारी अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का थाना मजंग सिविल लाइन्स का अचानक दौरा। थानों में आए सालिन से मुलाकात की, मसाइल सुने। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने थाना मजंग और सिविल लाइन्स के फ्रंट डेस्क, रिपोर्टिंग रूम, मालखाना और हवालात समेत दीगर शोबों का मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस ने थानों में आए सालिन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। फैसल कामरान ने सालिन के मसाइल हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। DIG ऑपरेशंस ने थाने में आने वाले हर शहरी से इज्जत और एहतराम से पेश आने और उन्हें इंसाफ फराहम करने की भी हिदायत जारी की। इस मौके पर फैसल कामरान का कहना था बदउनवानी, इख्तियारात से तजावुज़, गैर कानूनी हिरासत और पुलिस तशद्दुद में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। 18वीं रजिस्टर्ड प्रीमियम प्राइज बॉन्ड 2025 के ड्रॉ की तकरीब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हुई। 3 करोड़ का पहला इनाम 2 प्राइज बॉन्ड पर निकला। इनाम शफाफियत से निकालने के लिए ड्रॉ कमेटी के 6 मेंबरान मौजूद रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 18वीं रजिस्टर्ड प्रीमियम प्राइज बॉन्ड 25,000 के ड्रॉ की तकरीब मुनक्कद हुई। 3 करोड़ का पहला इनाम 236174 और 272160 का निकला। 1 करोड़ के दूसरे इनाम में 418337 464014 722511 278896 957042 का निकला। 3 लाख का इनाम 700 प्राइज बॉन्ड्स का निकला। चेयरमैन ड्रॉ कमेटी हाजी मोहम्मद आसिफ सहर की सरबराही में इनाम शफाफियत से निकालने के लिए ड्रॉ कमेटी के 6 मेंबरान मौजूद रहे। आसिफ सहर का कहना था कि शफाफियत की बेहतरीन मिसाल यहाँ मिलती है। 100% एतमाद किया जा सकता है। लोगों के जो ज़हन में कॉन्सेप्ट है कि ये कुरानंदाजी पता नहीं किस तरीके से करते, नहीं, कुरानंदाजी उसी तरीके से होती है। सिर्फ प्राइज बॉन्ड स्टेट बैंक में आके लेने पड़ते हैं, सिर्फ फॉर्म फिल करना है। ये एक तरीका उन्होंने बदल दिया है। बाकी प्राइज बॉन्ड के पर जो दूसरे प्राइज बॉन्ड है वो तो किसी भी शेड्यूल बैंक से भी मिल जाती हैं, कौमी बचत के इदारों से मिल जाती हैं, स्टेट बैंक से मिल जाती हैं। डिप्टी चीफ मैनेजर प्राइज मनी यूनिट अदरीस अहमद डायरेक्टर शामिल मौजूद थे। डिप्टी चीफ मैनेजर प्राइज मनी यूनिट अदरीस अहमद, डायरेक्टर कमेटी कौमी बचत नदीम इकबाल, बोर्ड मेंबर लाहौर चैम्बर आमिर अली हसन, एहसन शाहिद, सदफ जिया ने भी प्राइज बॉन्ड के ड्रॉ को शिफाफ करार दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है और जैसे मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों को इंगेज किया गया है, एकेडेमिया से, कुछ स्कूल से, कुछ चैम्बर्स से एंड डिफरेंट बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे आए हैं। आके वो दे कैन वॉच इट विद देयर नेकेड आई दैट how transparent is the system, so I really feel very proud of it. शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मैनुअल ड्रॉ मशीन से स्पेशल बच्चों के जरिए करवाया गया। हर एक ड्रॉ को फौरन अपडेट किया गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर एक तारीखी शहर जहां मुमताज़ शख्सियत से मंसूब मकबरे मौजूद हैं, लेकिन हुकाम की गफलत के बायस बुद्धू कमार का मकबरा अपनी शिनाख्त खोने लगा। बुद्धू कमार मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में शाही महल को ईंटें फ्राहम करते थे। GT रोड पर UET के करीब वाक़या बुद्धू कम्हार का मकबरा वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी शनाख्त खो रहा है। मुगल दौर की शानदार इमारतों में इस्तेमाल होने वाली तमाम ईंटें इस मकबरे में दफन बुद्धू मियाँ के भट्टे में तैयार होती थीं। इस मकबरे के गुम्बद को सुनहरी ईंटों से सजाया गया था, लेकिन अब गुम्बद भी गिरने को है। मकबरे की दीवारें भी खस्ता हाली का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कि ये मकबरा कभी कभार खुलता है, इसकी देखभाल नहीं की जाती। मकबरे के अंदर और इतराफ में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। ये 20-25 साल हो गए मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ,
اس کو ایسے دے. یہ ایسے لگتا ہے جو مقبرہ بنا ہوا ہے. نہ اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی ادھر کوئی پانی ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں پودے سوکھے ہوئے، سارا کچھ سوکھا ہوا ہے، نہ کوئی آنا نہ کوئی جانا. یہ سارے قدیمہ بدھو کا ہوا ہے، سارے قدیمہ کی عمارت ہے، خستہ حالت ہے. اس کے متعلق کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، نہ کوئی مرمت ہو رہی ہے، ویسے ہی کا ویسے ہی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ پیسے خرچ کریں اور اس کی عمارت کو بہتر بنائے. مقبرے کی خستہ حالی اپنی داستان خود بیان کرتی ہے. وہ شخص جس کے بھٹے کی اینٹوں سے شاندار اور مضبوط شاہی محل تعمیر ہوتے تھے، آج اس کے مقبرے کی اینٹیں کمزور ہو چکی ہیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.